What's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 5th of January, and yet again we had quite an eventful weekend. कुछ भी बोलो, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है एंड वीकेंड्स हमेशा इवेंटफुल रहते हैं. सो दिस वीकेंड इट वाज द यूएस अटैकिंग वेनेजुला. Not only did US attack Venezuela, but also it abducted the sitting president of Venezuela along with his wife. A lot of people started speculating on social media that how this is going to be a game changer and how this is going to change the face of geopolitics in the coming days. But because this event didn't have much of a significance in the shorter term, तो markets ज़्यादा कुछ react नहीं किया है. Both the US markets and the global markets इतना ज़्यादा कुछ respond नहीं किया इस event को लेके. तो this event was kind of a non-event for the markets. तो Indian markets भी काफी flat open हुए. We opened somewhere around 26,350 levels, and within the first 15 minutes the markets dipped to 26,250 levels. Almost 100 points का dip देखने को मिला, and exactly from that level the markets again spiked back up 100 points, almost kind of breaking out of the day's high. But वहां से एक fake breakout देके the market saw some sort of a sell-off. The sell-off was pretty sharp, almost 150 point का sell-off देखने को मिला. The markets made a bottom of 26,200 levels, and currently it is closing somewhere around 26,250. Straddle opened at somewhere around 126, 127, and throughout the day it went in one direction. It kept getting crushed, and once it reached 100, there was some sort of a minor spike. एक 11-12 points का straddle में spike देखने को मिला, but again towards the end of the day 102, 103 के आसपास straddle कहीं ना कहीं close हो रहा है. So a lot of people who are taking short straddles positionally, overnight risk लेके जो जा रहा है, they are kind of unwilling to short the straddles below 100. So last week भी ये phenomena हमको देखने को मिला. Last week also we opened somewhere around 130, and intraday it made a low of 99, and 99 पहुंचते ही एक spike वापस देखने को मिला. We saw 15-16 point spike last week as well. So this week again similar story. We are closing at somewhere around 100. तो कल 85, 80 के आसपास straddle open होने को मिलने वाला है. But at the same time the day's range has been expanding. So Friday के दिन भी एक range expansion हुआ था. आज भी एक 150, 160 point के range में markets घुमा है. तो it's going to be very interesting how to play tomorrow's expiry. So let's get to the terminal and let's see क्या trade opportunities बन सकता है. All right, markets ने at the all-time high levels एक red candle print किया है, that to some sort of a Marubozu candle, and this might look like some sort of a double top in formation because a lot of people would start taking this as the double top and they'll start shorting the markets. So अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो मार्केट शुड नॉट ब्रीच दिस लेवल. ये जो स्ट्रॉन्ग जो ग्रीन कैंडल हुआ है उसके नीचे एक डेली क्लोज नहीं देना चाहिए बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड स्टार्ट considering this as some sort of a double top and start initiating short trades below the low of this today's candle. तो आज के लो अगर breach होता है तो lot of people would start initiating their shorts. तो it is in the favor of bulls अगर इस हाई को मार्केट 2-3 दिन के अंदर तोड़ जाए एंड 26,400 के ऊपर एक डेली क्लोज मिल जाए, बिकॉज अभी तक हमको एक डेली क्लोज नहीं मिला था ऑल टाइम हाई के आसपास. ऑल टाइम हाई एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई से जस्ट थोड़े लो ही मतलब हमको एक डेली क्लोज मिला है. तो वी नीड अ क्लोज अबाउट 26,400 लेवल्स, एंड मेरे लिए एक फेवरेबल सिनेरियो ये था कि मार्केट्स यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, एक 26,800 तक जाए एंड वहाँ से एक 700 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स का एक फिर से प्री बजट सेल ऑफ देखने को मिल जाए. यहाँ पे थोड़ा वीक हैंड्स को शेकआउट मिल जाए एंड उसके बाद बजट को कैटलिस्ट की तरह यूज करके मार्केट्स और ऊपर जाए. तो दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन, बट अगेन दैट इज माय प्लान ऑफ एक्शन. बट at this point we can't be doing wishful thinking. We just have to follow the market's price action. इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट आता है तो अगेन द मार्केट्स विल अगेन गेट स्टक इन सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन रेंज. बट अगेन बजट आ रहा है तो वी हैव लेस देन लाइक 15-16 sessions of market action before budget. तो yes, there is a quite a possibility that markets में थोड़ा मतलब volatility वापस pick up होने वाला है. And even today's price action, it was quite volatile to be honest. हमने discuss किए थे कि like अगर gap up भी खुलता है या flat भी खुलता है तो we'll be waiting for this level. तो इस dip पे markets को हम लोग buy कर सकते हैं. तो yes, this was low risk kind of an entry point. If somebody captured this 100 point का rally, good for them. But if somebody expected the markets to continue higher, तो यहाँ पे हमको एक structure break मिल गया था. तो एटलीस्ट हम लोग प्रॉफिट में ही हम लोग इस ट्रेड को क्लोज कर सकते थे. एंड इवन इफ समबडी हेल्ड ऑन टू द ट्रेड इवन टिल द एंड ऑफ द डे, आई थिंक कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट फुल हम लोगों को एग्जिट मिल गया होगा. बट अगेन टुडे हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ अ सेल ऑफ काइंड ऑफ अ डे बिकॉज पहले मार्केट 100 पॉइंट्स का सेल ऑफ देखने को मिला, डिप देखने को मिला, उसके बाद एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ सिनेरियो प्ले आउट करके उसके बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे 26,200 से लेके 26
ऑलमोस्ट 280, ऑलमोस्ट एक 80 पॉइंट का एक रिकवरी भी मार्केट्स में देखने को मिला है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट टुमारो इज निफ्टीज वीकली एक्सपायरी, सो हो सकता है मार्केट्स अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो कल मार्केट्स इसी रेंज के अंदर रहे। बिकॉज अगर स्ट्रैडल की बात करें तो समवेयर अराउंड 100 रुपीज स्ट्रैडल क्लोज हुआ है। सो if we go to the straddle chart, I'll add the widget, I'll add the straddle and I'll remove the spot and synthetic future. तो कहीं ना कहीं स्ट्रैडल 97 के आसपास क्लोज हुआ है। सो यस, टुवर्ड्स द फाइनल 5 मिनट्स, यस 90 100 के नीचे फाइनली क्लोज मिल ही चुका है। एंड या 100 के आसपास एक हमको स्ट्रैडल में स्पाइक देखने को मिला था। 99 से स्ट्रैडल 112 113 के आसपास एक स्पाइक दिखाया एंड टुवर्ड्स द एंड 97 98 के आसपास स्ट्रैडल क्लोज हो चुका है। तो अगेन टुमारोज एक्सपेक्टेशन इज विल गेट अ स्ट्रैडल ओपन एट 185 और 80। अगर 80 के नीचे खुलता है तो देन अगेन वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्शनल मूव एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशंस। सो कल के लिए ओपन इंटरेस्ट तो बात नहीं करने वाला है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव शॉर्टेड द कॉल्स टुडे। सो इफ वी select Nifty, you can see that 26,300 पे काफी ज्यादा कॉल राइट हो चुका है एंड एट द सेम टाइम 26,300 पे पुट्स अनवाइंड हो चुके हैं। अगेन दिस इज अ कैट एंड माउस काइंड ऑफ अ गेम। ओपन इंटरेस्ट स्पेशली इन द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत जल्दी कंटिन्यूसली हैंड्स एक्सचेंज होते रहते हैं। वी कैन नॉट बी लाइक बेसिंग आवर ट्रेड्स स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट बिकॉज 15 मिनट में ओपन इंटरेस्ट का पूरा गेम बदल जाता है। सो एट दिस पॉइंट आई हैव नॉट बी गिविंग टू मच ऑफ अ हीड ऑन टू द ओपन इंटरेस्ट। बट इफ यू कैन नोटिस 26,200 26,100 इवन 26,000 पे भी कुछ ना कुछ मतलब ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो चुका है। सो पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट्स माइट बी फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न एंड अगेन कम बैक इनटू द कंसोलिडेशन रेंज व्हिच इज बिटवीन 26,300 एंड 25,700 लेवल्स। बट आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि मार्केट्स एक्चुअली कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। इस रेड कैंडल का हाई को विद इन नेक्स्ट 2 और 3 सेशंस मार्केट्स तोड़ने वाला है। तो अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स की अगर बात करें तो कल के लिए अगेन ओपनिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी अच्छा एक डिमांड आया है इस लेवल पे। मार्केट्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है। दिस मल्टीपल टच पॉइंट्स है 1 2 3 एंड फोर्थ टच पॉइंट में एक इनिशिएटिव बायर्स आके मार्केट्स को ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स ऊपर लेके गए हैं। बट वहां से मार्केट्स थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है। तो अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है 26,170 के आसपास खुलता है तो देन ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ अ फेवरेबल सिनेरियो फॉर डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स बिकॉज हमारे लिए जो रेंज बन जाता है 26,230 ऑन द अपसाइड एंड 26,120 ऑन द डाउन साइड। सो 90 पॉइंट ऑन द अपसाइड एंड 90 पॉइंट ऑन द डाउन साइड। बट अगेन सिंस स्ट्रैडल ही हमारे पास 85 या 80 के आसपास खुलने वाला है तो हम तो बेसिकली फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद का स्ट्रैडल का वैल्यू लेके चलता हूं मैं। तो 80 रुपीज मान के चलता हूं मैं। तो इवन इफ इट इज 80 पॉइंट्स तो मार्केट्स आपको बहुत ज्यादा चॉप करने वाला है कल भी। सो इट इज टू आवर एडवांटेज एंड इट इज प्रूडेंट टू एक्चुअली वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव। तो मेरे लिए मार्केट्स अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है तो अगर मार्केट 26,180 से लेके 26,200 के बीच में अगर गैप डाउन खुलता है तो देन आई विल एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू हिट 26,130 लेवल्स। तो बेसिकली आप इनिशियल टिक पे ही आप एक शॉर्ट पोजीशंस करके एक 20 to 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के एक शॉर्ट पोजीशन आप कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो देन बेसिकली ये हो जाता है कि मार्केट्स गैप डाउन खुला एंड मार्केट्स ने वापस रेंज के अंदर आ गया तो देन मार्केट्स के लिए एक डे का बॉटम बन जाता है एंड यहाँ पे हम लोगों के पास एक टॉप भी मिल जाता है 26,300 कहीं ना कहीं। तो देन यू कैन कन्वर्ट योर व्हाटएवर द बेयरिश ट्रेड इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड स्ट्रक्चर। स्ट्रैडल्स होने दो या स्ट्रैंगल्स होने दो, कुछ भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दैट द सिनेरियो इज मार्केट्स ओपन होना चाहिए इस 20 पॉइंट के बीच में। बट अगर इसके नीचे अगर खुल जाता है तो देन आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू 26,120 लेवल्स। यहाँ पे आने के लिए मैं वेट करूंगा और यहाँ से मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा विथ 20 और 25 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मेरा प्रिफर्ड स्ट्रक्चर जो रहता है यूजुअली कॉल रेशियो रहता है। यू कैन एक्चुअली बाई लाइक 26,100 कॉल्स एंड सेल 26,200 प्रॉब्ली 1:3 काइंड ऑफ अ कॉल रेशियोस यहाँ पे कर सकते हैं। और यू कैन इवन शॉर्ट एट द मनी पुट ऑप्शन ऑल्सो। बट 2 ट्रांचेस में एंटर करो, एक ही ट्रांच में एंटर मत करो। ऑलराइट, सो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, लेट्स से लाइक मार्केट इस स्विंग के ऊपर खुलता है तो देन I'll take this as the range। तो ये मेरे लिए फिर से रेंज बन जाएगा एंड I'll be waiting for the markets to actually come here एंड यहाँ पे मेरे को एक 1 मिनट कैंडल में 1 मिनट चार्ट में या 3 मिनट चार्ट पे मुझे एक एम काइंड ऑफ अ पैटर्न और सम सॉर्ट ऑफ एन एंगल्फिंग कैंडल, एक रेड एंगल्फिंग कैंडल चाहिए। तो जब ये एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है तो देन वहां पे मैं एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ विथ समवेयर अराउंड दिस बैंड एज द टारगेट। इस बैंड टारगेट को रख के मैं ये कर सकता हूँ। बट लेट्स से गैप अप खुल के विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट यहाँ पे आता है तो देन आई विल बी यूजिंग दिस लेवल। ये जो लेवल है 26,200 लेवल, आई विल बी यूजिंग दिस लेवल एज सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स। यहाँ पे मैं फिर से
एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस में प्राइस एक्शन बना के ऐसे जाना शुरू करता है, तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंडिंग डे एंड अनदर 80 पॉइंट्स का हमारे पास एक लीवे मिल जाएगा, एक मार्केट्स को एक ओपन स्पेस मिल जाएगा। तो इस काइंड ऑफ अ पैटर्न अगर फॉर्म होता है, तो देन वंस योर स्टॉप लॉस गेट्स हिट हियर, यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट योर लॉन्ग ट्रेड इनटू अ शॉर्ट ट्रेड एंड अगेन प्ले फॉर दीज टारगेट्स। तो ये मेरे लिए कल के लिए जो पॉसिबल सिनेरियोज मेरे को दिख रहा है, तो दिस इज दिस, बिकॉज मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी देयर हु वांट टू बुक द प्रॉफिट्स, हु वांट टू गो लॉन्ग एंड हु वांट टू इनिशिएट फ्रेश शॉर्ट ट्रेड्स हियर, बिकॉज ऑल टाइम हाई के आसपास जब भी मार्केट्स को डबल टॉप फॉर्म होने से पहले, बेसिकली ये नेकलाइन ब्रेक होने से पहले जो लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, उनके लिए यस कंफर्मेशन नहीं मिलता है, बट द फ्लिप साइड और द ट्रेड ऑफ फॉर नॉट गेटिंग दैट कंफर्मेशन इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। बिकॉज हम लोग डेली चार्ट पे जाके अगर बात करें तो कैन सी दैट अगर जो लोग शॉर्ट ट्रेड्स इनिशिएट करने वाले हैं उनके लिए यस अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं मिला है, बट अगर वो जो लोग यहाँ पे इनिशिएट करते हैं उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ जाता है। तो मार्केट्स अगर उनके डायरेक्शन में 50-60 पॉइंट्स भी अगर ट्रैवल कर जाता है, तो बेसिकली उनके लिए वो जो ट्रेड होता है वो फ्री बन जाता है। तो दैट इज वाई वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, यस इट इंक्रीजेस योर चांस ऑफ बीइंग राइट, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। अगर कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करोगे, आप इनिशिएटिव बायर या सेलर हो, बेसिकली लेवल पे ही आप इनिशिएट कर लोगे, तो यस आपको पता नहीं है कि मार्केट्स पैटर्न फॉर्म करने वाला है, बट एट द सेम टाइम आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी अच्छा रहता है। दिस इज द ट्रेड ऑफ। ऑलराइट, तो कल के लिए मेरा सिनेरियोज ये है। तो आई अगेन सी यू गाइस आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.